with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتنے سے تمہیں پیدا فرمایا. یعنی اللہ رب العزت نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لفظ اقرا والی پہلی آیت اتار کر پوری دنیا کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تمہیں ایجوکیشن سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے, تمہیں اپنے آپ کو ایجوکیشن سے رشتہ رکھنا چاہیے, اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے ایجوکیشن کی بنیاد پر. اگر تم جاہل رہ گئے دنیا تمہارے اوپر حکومت کرے گی. ہم حکومت کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے مگر دنیا میں جاہل رہ گئے ہم, جس کی وجہ سے دنیا ہمارے اوپر حکومت کرتی ہے. ہم دنیا والوں کے غلام بن کر رہ گئے, دنیا والوں کے غلام بن کر رہ گئے, جبکہ ہماری حیثیت الگ تھی, ہمارا اسٹیٹس الگ تھا, ہماری پہنچ الگ تھی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مشن کا آغاز فرمایا تھا مصطفیٰ جان رحمت نے, اس مشن کے پیچھے راز تھا یہ کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اونچے پوسٹ پر رکھنا چاہتے تھے, اونچے عہدے پر رکھنا چاہتے تھے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمے کی ایسی تبلیغ فرمائی, مصطفیٰ کی فضا, مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی ایسی فضا بندی ہوئی کہ پوری دنیا میں آج مذہب اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پھیلتی جا رہی ہے اور ہم چور سپاہی والا کھیل کھیلیں گے. میرا بیٹا پب جی کھیلے گا, میرا بیٹا فری فائر کھیلے گا. مسلمان کا چھوکرا برباد ہو رہا ہے. اس چکر میں رات کے 11 بجے میرا بیٹا میرے گھر لوٹتا ہے, 12 بجے باپ کے دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے, تب گھر پہنچتا ہے. باپ کو ہمت تک نہیں ہوتی ہے کہ اس کو پوچھے کہ اتنی رات گئی کہاں تھے. نہ اس کا باپ پوچھ سکتا ہے نہ اس کی ماں پوچھ سکتی ہے. یہ حوصلہ کہاں سے پائے گا وہ باپ؟ کون باپ اپنے بیٹے کے گریباں کو تھام کر کہے گا اتنی رات گئی کس آوارہ کے ساتھ آوارگی مچا رہا تھا؟ پوچھنا چاہیے تھا نا بیٹے کے لیے, بیٹے کو پوچھنا چاہیے تھا, باپ کو پوچھنا چاہیے تھا بیٹے سے, مگر کون باپ پوچھے گا؟ یہ ہمت تو اس باپ کو ہوگی جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر گھر میں بیٹھتا ہو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عشاء کا کھانا کھاتا ہو, رات کا کھانا کھاتا ہو. وہ باپ اپنے بیٹے سے پوچھے گا. مگر جو باپ خود رات کو چوراہے پر کھڑا ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ اڈا بازی کرے گا, کیرم بورڈ کھیلے گا, لوڈو کھیلے گا, آنے جانے والی لڑکیوں کو تارے گا, اس باپ کا بیٹا وہ اپنے بیٹے کو کیسی ہمت ہوگی کہ وہ پوچھ لے گا؟ اس کا بیٹا تہجد گزار ہو جائے گا, یہ تصور بھی مت کرنا. اس کا بیٹا بھی تباہ ہوگا, اس کے بیٹے بھی آوارگی مچائیں گے. اس لیے ہمارے بچے آج برباد ہو رہے ہیں. میرا بیٹا کیرم بورڈ کھیلتا ہے, اب تو یہ کیرم بورڈ بوڑھے پرانے لوگ کھیلنے لگے. اب ہمارا بچہ پب جی کھیلے گا, ہمارا بیٹا فری فائر کھیلے گا. میں کہتا ہوں ان بچوں کی زندگی تباہ کون کر رہا ہے؟ ان بچوں کی لائف کو برباد کون کر رہا ہے؟ اس کی بربادی کے پیچھے اس کا باپ ہے. اس کے موبائل کو ریچارج اس کا باپ کرواتا ہے, ماں پیسے جمع کر کے اس کے موبائل میں ریچارج کرواتی ہے. 4 سال کی عمر کا بچہ پب جی کھیلتا ہے, فری فائر کھیلتا ہے. یعنی میری نسلیں پوری تباہ ہو رہی ہیں اور دنیا والے پڑھ لکھ کر کے ایجوکیشن کی وجہ سے بلند مقامات حاصل کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم منہ کھولے رہے ہیں آسمان سے خدا رسول اللہ گرا ہے. ایسے نہیں رسول اللہ گرتا ہے, پہلے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, پھر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو میں نہیں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت اگر چاہتے تو بند کمرے میں مصطفیٰ دعا کر دیتے, مولا مسلمانوں کی حمایت فرما. مگر مصطفیٰ نے بند کمرے میں دعا نہیں فرمائی. مصطفیٰ نے پہلے 313 کی تعداد کو 10,000 کے مقابلے میں اتارا پہلے مصطفیٰ نے. اس کے بعد مصطفیٰ مصلی بچھاتے ہیں, فرماتے ہیں پروردگارا یہ میری زندگی کی پونجی ہے, یہ میری محنت کا سرمایہ ہے. اگر آج یہ مارے گئے تو قیامت تک اس دھرتی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے پروردگارا اس لیے اس کی حفاظت فرما. اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے اپنی پونجی کو پہلے میدان میں اتارا, پھر دعا فرمائی تو خدا نے اس دعا کا ایسا استقبال فرمایا کہ 9,000 فرشتوں کی تعداد مسلمانوں کی مدد کے لیے خدا نے بھیجا ہے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ خطاب سمجھ میں آ رہا ہے؟
आलिमों को पैसे मत देना, मुकर्रिर को पैसे मत देना। मुकर्रिर को इनाम देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या फायदा मुकर्रिर को इनाम देकर के? शायर आएगा उसको हवा में उड़ाकर पैसे देना। मैं 80% शायर को जानता हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं संजय भाई वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वरना 80% शायर को मैं जानता हूँ नाथा को, जो उला पढ़कर छोड़ दिया है, सानिया पढ़कर मदरसा छोड़ दिया है, कोई सालसा पढ़कर मदरसा छोड़ दिया है, कोई 5 पारा हिफ्ज़ करके छोड़ दिया है, कोई मदरसे से भागा हुआ है। यानी आवाज अच्छी थी, स्टेज की दुनिया में उसकी आवाज की बुनियाद पर वो चलने लगा। लोगों की सोच कैसी हो गई, जब आदमी आवाज की बुनियाद पर पैसे कमाएगा, एक जाहिल आदमी आकर के नाम पढ़ेगा, उसको लोग पैसे उड़ाएंगे और उड़ा उड़ा कर पैसे देंगे। और एक आलिम दीन मदरसे में 15 साल का वक्त खपाएगा, बुखारी शरीफ पढ़कर आएगा, तिरमिज़ी पढ़कर आएगा, मुस्लिम शरीफ पढ़कर के आएगा, यहाँ बैठकर बुखारी की इबारत पढ़कर सुनाएगा, तिरमिज़ी की इबारत पढ़कर सुनाएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़कर सुनाएगा, और हमको लगेगा कि सांप काट कर हमको बैठाया है, यानी मेरे सर में जू तक नहीं रहेगा। इसका नतीजा क्या हो रहा है मालूम है? गली कूचे में नाथ खां पैदा हो गए, मगर आलिम का नामो निशान धीरे धीरे मिटने लगा। बड़ी मुश्किल से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। मेरे 5 साल का बच्चा, उसको मैं पूछता हूँ हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, आलिम बनेगा, फाजिल बनेगा, मुफ्ती बनेगा, क्या बनेगा? वो 5 साल का बच्चा बोलता अब्बू मैं शायर बनूंगा। मैंने कहा तेरा बाप इतना बड़ा मुक़ल्लिद है, मगर तू शायर बनने चाहता है, इसके पीछे राज क्या है? वो बच्चा बोलता है कि आपको तकलीफ करते हुए देखता हूँ, लोग पैसे नहीं देते हैं, मगर शायर को पैसे देते हैं। मैं कहता जालिम, जब उस 5 साल के बच्चे की सोच इतनी खराब हो चुकी है, आने वाली नस्लों के बारे में सोचो, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं आलिमों को पैसे दो। अगर आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा शराब की भट्टी में नहीं जाएगा, वो पैसा ताश के पत्तों में बिखेरा नहीं जाएगा। उस पैसे से आलिम या तो किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा या फिर खुद खाएगा, उससे एनर्जी आएगी, उससे जो तकलीफ करेगा, किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब उस आलिम को मिलेगा वो सवाब खुदा तुम्हें भी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। क्या जुमले हैं भाई। मैं अपनी बात, मैं अपना बाजार नहीं समझा रहा हूँ, ये नहीं समझे कि मैं अपना बाजार बना रहा हूँ, ये समझे कि मैं आने वाली लकीब आलिमों के हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई भी आलिम दीन जब आए, कोई इबारत पढ़ कर सुनाए या कोई बात अच्छी लगे हुजूर का फरमान पढ़ कर सुनाए, तो आपने इनाम दीजिए। इससे नतीजा ये निकलेगा, लोग ये समझेंगे, लोगों का माइंड एक तरफ कन्वर्ट नहीं होगा कि मैं अपने बेटे को शायर बनाऊंगा, लोग ये समझेंगे कि अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा। आलिम दीन बनने का फायदा, आलिम दीन जब नात पढ़ता है तो उसमें खुलूस होता है, उसमें इलाहियत होती है। इसलिए अपने बच्चों के हवाले से लोग ये सोच लें अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। आलिम बनने के बाद अब या तो वह शायर बने या मुक़र्रिर बने, ये उसकी मर्जी, मगर इल्म रहेगा तो क़यामत के दिन मुस्तफा इल्म का लिहाज फरमा लेंगे। आलिम बनेगा तो मुस्तफा इस इल्म की लाज रख लेंगे। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा बेटा सिर्फ डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनाना बुरी बात नहीं है, मगर डॉक्टर बनने वाले बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाओ कि ये काम करने से खुदा राजी होता है, इस काम से खुदा नाराज होता है, ताकि तुम्हारा बेटा आगे चल के खड़ा होकर के पेशाब न करे। 5 साल का बच्चा जब खड़ा होकर पेशाब करता है, उसको जब लोग टोकते हैं, उसके बाप को कहते तुम्हारा बेटा खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, तो वो बेवकूफ आदमी बोलता मौलाना अभी वो छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा। जालिम, बड़ा होगा तो सीखेगा नहीं, तुझे लकी आएगा, तुझे लात मारेगा। उसे सिखाने की उम्र अभी है, उसे आज सिखाओ ताकि बड़ा होने के बाद वो सोचे कि आज से 25 साल पहले 5 साल की उम्र में
एक छोटी सी गलती की थी तो मेरे बाप ने तंबीह की थी, मेरा बाप नाराज हुआ था। अगर वो गलती आज करूंगा तो मेरा खुदा कितना नाराज होगा, मेरे मुस्तफा कितने नाराज होंगे। तुम्हारे बच्चों की सोच अच्छी होगी। मैं घर में बैठकर खाना खाता हूँ, मेरे सर पे टोपी नहीं होती है। मेरा 5 साल का बच्चा जिस दिन मुझे टोक कर कह दिया अब्बू जान टोपी पहन लीजिए ना, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है, उस दिन तुम्हें लगेगा कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है, मेरी तरबियत काम कर रही है। मगर न बाप के सर पे टोपी, न बेटे के सर पे टोपी, न माँ के सर पे दुपट्टा, न बेटी के सर पे आंचल, ये तहजीब किसकी दी हुई है? ये तहजीब तुम्हारे पैगंबर की तो नहीं है। मेरे पैगंबर की तहजीब दुनिया के तमाम तहजीबों से बेहतर है, दुनिया के तमाम तालीम याफ्ता लोगों से बेहतर है मेरे मुस्तफा की तहजीब। मेरी बेटी अलग कमरे में बैठकर टिकटॉक में वीडियो बनाती है, मेरा बेटा फेसबुक में नहा रहा है नदी में, नहाते नहाते सेल्फी ले लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। जांघिया पहनकर नहा रहा है, नहाते नहाते सेल्फी ले लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। मेरी बेटियां सुरमा लगाकर, काजल लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, शीशे दिखलाकर अपने अधरंग के कपड़े में रात के सन्नाटे में टिकटॉक वीडियो बनाती है। किस लिए? ताकि 2-4 फॉलोअर्स बढ़ जाए, 2-4 लाइक्स मिल जाए। इन बेहुदा और बेवकूफ लड़कियों को कौन समझाएगा कि कपड़े उतारने की वजह से खुदा शोहरत नहीं देता है। खुदा जब शोहरत देने पे आता है तो तुमने देखा नहीं कर्नाटका में मुस्कान नाम की उस लड़की को जिसने हिजाब के अंदर लाकर नकाब पहनकर खुदा के नाम का ऐसा नारा लगाया कि पूरी दुनिया में किसी ने मुस्कान का चेहरा नहीं देखा, मगर मुस्कान का नाम पूरी दुनिया जानती है। अरे बा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मदीना कॉन्फ्रेंस है। क्या कहने भाई, तुम इतने लोग होकर भी बोल नहीं सकते। मुझे 313 का लश्कर याद आता है। Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Read the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु। मेरी माएँ और बहनें भी जाकर बैठी हैं, खड़ी हैं तो बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी तादाद में मर्द और खवातीन दोनों हैं। दोनों के लिए खिताब जरूरी है, दोनों को तकरीर सुननी चाहिए। खिताब नहीं सुनोगे तो दीन कैसे समझोगे, तकरीर नहीं सुनोगे तो शरीयत कैसे? ए बेटा जो पांव फैलाकर बैठा है ये तरीका गलत है, टेक लगा करके बैठना आलिमों के सामने गलत है। आलिमों के अदब करना चाहिए। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा जब किसी इमाम को भेजते थे किसी जगह पे तो ये 3 नसीहत करते थे अल्लामा अरशदुल कादरी, अगर तुमको इमामत की जगह पे बने हुए रहना है तो इन 3 नसीहत पे अमल करना। पहली नसीहत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की ये होती थी कि तुम अपने कमरे में जब रहो, तुम्हारे कमरे में चाहे कोई सदर आए, चाहे कोई सेक्रेटरी आए, चाहे कोई खजांची आए, चाहे कोई करोड़ों की बिल्डिंग में रहने वाला कोई कितना बड़ा सेठ आ जाए, उसे अपने बेड पे बैठने मत देना। जहां तुम बैठते हो वहां वो बैठ न पाए, उसके लिए अलग से वीआईपी कुर्सी मंगा देना। वो वहां बैठने के लायक है, मगर जहां इमाम बैठता है वहां बैठने के लायक वो नहीं है। हर एक की जगह के लिए एक प्रोटोकॉल है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में जहां बैठकर इमाम आजम अबू हनीफा दर्स देते हैं, वहां एक दिन आकर इमाम मोहम्मद बैठ गए। इमाम मोहम्मद फिक्र के बड़े इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द। इमाम आजम अबू हनीफा कौन? हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, when I feel in trouble I go to the nearest of graveyard of इमाम आजम अबू हनीफा and I pray 2 रकात नमाज़ नफल। आप फरमाते हैं जब मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र के पास चला जाता था, वहां जाकर 2 रकात नमाज़ नफल अदा करता था, चुटकी में मेरी परेशानी का हल निकल आता था। ये इमाम शाफी फरमाते हैं इमाम आजम अबू हनीफा जहां बैठकर दरसगाह लगाते थे, जहां बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे, उस जगह पे आकर अचानक एक दिन इमाम मोहम्मद बैठ गए। इमाम आजम तशरीफ ला गए, ले आए, फरमाते मेरी जगह पे कैसे बैठ गया? आप फरमाते बैठ गए। फिर
पर ये चाही बैठ गया। इमाम आजम फरमाते हैं इस जगह पे बैठने के लायक हो गया क्या? इमाम मोहम्मद फरमाते यकीनन आपकी तालीम से, आपकी दुआ से इस लायक हो गया। इमाम आजम फरमाते हैं तो फिर बता नमाज की शुरुआत फर्ज से होती है या सुन्नत से शुरू होती है? इमाम मोहम्मद फरमाते हैं नमाज की शुरुआत फर्ज से होती है। इमाम आजम फरमाते हैं गलत है। कहा सुन्नत से शुरू होती है, कहा गलत है, कहा फिर बात क्या है? आप फरमाते हैं नमाज की शुरुआत न सिर्फ फर्ज से, न सिर्फ सुन्नत से, बल्कि फर्ज और सुन्नत दोनों से नमाज की शुरुआत होती है। अल्लाहु अकबर बोलना यह फर्ज है और हाथों को कानों की लौ तक लेकर नाक के नीचे बांधना यह मुस्तफा की सुन्नत है। इमाम मोहम्मद कदमों में गिरते हैं, फरमाते हुजूर मैं पहचान गया शागिर्द चाहे जिस लेवल पर भी पहुंच जाए उसका आपके कदमों के दूर की भी बराबरी नहीं कर सकता। शागिर्द चाहे जिस लेवल पर भी पहुंच जाए वो उस्ताद के कदमों की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकता है। मैं तो कहीं जाता हूं तो मैं अपने असातिज़ा से, दारुल उलूम में पढ़ाने वाले असातिज़ा से बोलता हूं कि जब आप दरसगाह में बैठ कर पढ़ाते हैं थोड़ा करंट आ रहा है इसमें, जरा इसको अगर साफ कर दे तो ठीक ठाक मामला रहेगा। ये जब सट रहा हूं मैं तो जरा सा एक अजीब झनक महसूस हो रही है, जरा इसको अगर ठीक कर दे तो बेहतर होगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ए बाबू हेलो, अच्छा ठीक है आ जाइए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें पूरा मजमा हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। यानी कोई बहुत बड़ा सेठ हो वो तुम्हारे प्रोटोकॉल के लायक नहीं है, तुम्हारा प्रोटोकॉल अलग है। अल्लामा क्या हुआ? हेलो क्या हुआ चाची? मेरी बहन बैठ जाओ। तुम लोगों के लिए तकरीरें ज्यादा जरूरी है। मर्द तो कहीं पर भी जाकर तकरीर सुन लेगा, बंद कीजिए उसको। मर्द तो कहीं पर भी तकरीर सुन लेगा, कहीं पर भी चले जाएंगे। ये कम से कम नहीं तो जुम्मे में एक दिन, हफ्ते में तो एक दिन तकरीर सुन ही लेते हैं, मगर औरतें तकरीर नहीं सुन पाती हैं। ये इनके पास टाइम नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो ये सीरियल देखने में अपना वक्त निकालती हैं।